Okay, so there are few functions. I think if functions, if, COUNTIF, sorry, SUMIF, COUNTIF, we discussed or not discussed? Can you just help me, because see, it's a long time, so I just want like confirmation from your end whether we discussed or not discussed. Ma'am, in the last class, we discussed the choral function. That is a correlation function we discussed, right? Yes, ma'am. Okay, 1 second. Just give me 1 minute, huh? Just started with the basically one of the data no, we had already discussed two approaches in the data analytics using Excel, right? So one we had already discussed with the very first approach, okay, using mean mode median basically part, and then we move into the another approach of the data analytics using Excel, and we had discussed the correlation part, right? Have we talked about any kind of basically analysis how it is, how it should return, like if we get a correlation coefficient is like in between the some towards the positive side or a negative side. So is there any kind of notes I had given you like during the session, like how it is being represent? Uh, Ma'am, we have done the two methods to find the correlation. The first one is the data analysis toolback, just by selecting and with the help Yeah. of the tools, we calculate the R, that the coefficient. Right. But the another one which we discussed, like a see, that is the most common we are going to follow. That is the Pearson coefficient for the correlation. So that is only the method we normally follow. That's a common and popular method. Okay. So there are other methods also, but we are not going into much detail about the statistics a part of that correlation. Okay, so Pearson coefficient of correlation only we are going to implement, and that already we had discussed. As per the notes, I am able to see the screenshots also, what we had applied, right? Stepwise. Yes, ma'am. Okay, after that, is there any conclusion or a summary I had given you, like how to represent when we taken a two parameters or a two variables which undergoing with the correlation, and how whatever be the correlation coefficient we are getting, so based on that coefficient value, is there any summary I had given you in the last class? Can you just help me with that if anyone is remember or anyone had No. written? No, ma'am, actually, we have done the two ways, and you said that the third and fourth way we will discuss in the next class. And you said that only the first method and the third method is used widely. The second method, which is the rank method, we used. It Right, is right, not right. used commonly, and the fourth one is also not used, but we don't know the third and fourth one. Okay, so I had not given you that about okay, okay. No, we had discussed about that. I remember. See, we had to calculate in the tabular format with the small data set. I remember about that. 1 second, just give me 1 minute. If you remember, we had taken one example here. I just opening that example. So Excel sheets now. In this, we had not discussed. 1 second. Yeah. So I had explained you two methods here. Okay. So one method which with the help of toolpack which we discussed, right?
and there we got the basically correlation between our customer, right? And the social media investment, right? So whatever be the customer retention we had taken in this data set, and the spend on the social media. So we got this as a correlation coefficient, that is 0.70, right? So this is being already written here. The second method which we are using with the help of Corel function. So when we are using Corel function, we had to calculate mm, rank of spend on the social media, means like basically two parameters which we are correlating. So uska rank, using rank function, we had to calculate individual rank. So here in the D column and the E column, we had calculated the rank, and based on, by using Corel function, we had evaluated the correlation coefficient using Corel function. Have you are you able to see on my function basically bar? We had calculated like this. Yes, ma'am. Yeah. And the third one is using graph. Okay. So if we want to draw a graph, okay, that will be a scattered graph. We will get it based on the values. Okay. And that graph is a very simple graph. We can have it. Look at this. Okay. 1 second. So such kind of scattered graph, we can have it with these two columns. Okay. What are these two columns? Means that two parameters which we are discussing. One is a spending on social media and customer retention. Okay. So these two parameters, we can have it into the graph. That is a method number 3. Are you understanding this, what I am saying here right now? Yes, ma'am. Okay, so I had not selected this. I had to select this. Okay, so I'm just selecting these two columns. Okay, and now I am inserting a chart. Okay, the scatter chart I am inserting here. Okay, I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Okay, so if you see here, there is a correlation exists because there are few dots which are into the same line. So suppose I want to draw something with this. Okay, I'm just copying this and I'm going back. So this is a method third, okay? And I'm just plotting here, okay? And now I'm just using a draw option here. So if I just try to draw a line, a straight line between this dots, so I will find that the maximum dots are covering here. So definitely we can say there is a correlation, positive correlation exists between spending on your digital marketing or a social media investment and the customer retention. Means there is a relationship. We can see it with the help of this straight line for this maximum dots or maximum basically points are covering on this. Okay, so this is kind of visual analysis we can have it for the correlation. Okay, and the method number 4 which we discussing was it is completely the statistical method actually, where we are going to have certain formulas, as I told you. I think with the draw with the help of some formula also I had explained. I think in the last class we had to summation of the x and y values, then minus deviation of x and y, divide by basically under root of your some summation xy minus x square, and another bracket again y square, right? If you remember. So that is the one of the statistical method which we are not going to use using Excel. That I told you, right? Yes, ma'am. Okay, so basically that method, as I think Naitik you were discussing, so that I told you that using statistical formula it is, and it is mainly used for a small data set, just having few values. Okay, so for that only we can use that, and that is purely statistical approach. We are not going to use those approach
here in the Excel, we will be using only 3 methods to identify the correlation. The method number 1 is using tool pack. And this tool pack, I hope you remember like how we had used this tool pack. If you just remember this screenshots, right? So in the data option, we just select the data option and get into the data analysis. And in the data analysis, you have to select the correlation here. And once you select the correlation, you need to select input range and the output range. So these two values variables you had to select with the help of range. And then you had to just click on the OK. So you will get the correlation coefficient between two parameters. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, can you just once again plot this scatter plot? Yeah, sure. So two parameters I had to select. See, correlation means there will be two parameters. Two variables are needed, X and Y, right? So here the column number B and column number C is my two parameters. Okay. Spend on social media and the customer retention. And I had to select these two columns and then I had to insert the scattered plot here. Like this. Then you can also edit the name here, whatever be the name you want to give it, correlation between your social media investment and the customer retention. So whatever be the name you want to give it, you can highlight it. That's a part of your representation. But how the scatter plot can be drawn here with the help of these two values, or basically two variables. I hope you understood. Yes, ma'am. Okay. The second thing here, if you just see here on the scattered graph, or this basically using this graph, you will find there are few lines or there are few points. I mean to say few points or dots are in the one of the common line. If suppose I try to draw any line, okay, so I will find at least three. Okay, at least three basically dots are on that line. You can have it any three. If you just select this, 1 second. If you just select this three also, you will find that you can possibly, you can draw a one line. If you try to draw another line with this three, again, you will have minimum 3 points on that same straight line. So when there are minimum 3 points exist, so it means that there is a correlation exists, which is a positive one. Okay. Now, how to write correlation basically if it is exists? So how you will write it? Anybody had tried that? I had given case study also, ना? किसी ने try किया क्या? And using graph. So these are the three ways we are having. Okay. One is using data analysis tool pack. Second is a Corel function. When you are using a Corel function, you need to first calculate the rank, and the third one is using scattered graph. Yes. Anybody? Anybody had solved that case studies which we discussed? Okay, I'll again give you the same basically homework. Okay, try to evaluate correlation. Okay, calculate the correlation coefficient and try to summarize it. I want proper explanation. Okay, try it. If you are not able to do it, we will discuss in the next class. Okay, so let me start with the further topic into the Excel that is most important or most useful Excel functions for the data analysis. So I hope we started with few which we had already used into central tendency, basically into the descriptive data analytics, right? Now there are few separate functions, okay, where the decision making is very easy on the data set. So the very first is if function. Anybody had tried if function anytime before? Okay, I will be using this notes file. Okay, yeah, tell me, anyone? Today we are discussing most useful functions. Excel function. I mean to say Excel functions. Okay. Okay, for the data analytics. Yeah.
So the very first is if function. किसी ने यूज किया है if function पहले कभी किसी डेटा सेट पे या किसी भी छोटे से किसी आपके एक्सेल के किसी रिकॉर्ड्स पे? Ma'am, we have used that average if function, not the single if, but if is used with other functions also, na? एग्जैक्टली बट if कहाँ पे यूज होता है? जहां पे हमको डिसीजन मेकिंग करना रहता है, राइट? Ma'am, we are given two conditions, हाँ. right? Okay, ma'am. So there we need two condition, okay? And then in the if we can use certain operators also. Operators means greater than or less than or equals to kind of operators. We can have it with the help of if function, okay? Because जहाँ पर decision making है. So if function is very useful function, okay? And this function means we can automate the decision making in our स्प्रेडशीट्स. हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग. ऑटोमेट मतलब हमको इंडिविजुअली चेक करने की जरूरत नहीं है. विद द हेल्प ऑफ दिस if फंक्शन वी कैन डायरेक्टली मेक द डिसीजन मेकिंग इन द स्प्रेडशीट. मतलब स्प्रेडशीट इन द सेंस जो हमारा डेटा है, जो हमारा ये शीट है, दैट इज कॉल्ड अ स्प्रेडशीट, ओके? विद द हेल्प ऑफ if what we can have it, okay? So let's talk about if function. तो ना मैंने कुछ मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ डेटा है, ओके? सो आई एम जस्ट यूजिंग if फंक्शन ऑन इट. ओके, ये डेज है. ओके, ठीक है. मैं हमारे फाइल पे ही काम करते हैं इस पे. सो मान लो अच्छा, यहाँ पे ठीक है. if में यहाँ पे आते हैं. अगर जैसे एक ऑर्डर डेट है और एक डिलीवरी डेट है, ओके? सो ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट के बीच में अगर हमको डेज कैलकुलेट करने हैं तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड डेज. सो डू वन थिंग एवरीवन, प्लीज ट्राई टू add this values in your excel sheet quickly. ये सेम वैल्यूज ऐड करो फटाफट. Audible? Yes, ma'am. ओके, ये ऐसे का ऐसा सेम आपको शीट बनाना है, ओके? अगर आपको चाहिए तो मैं ऐसे के ऐसे आपको कॉपी करके चैट में देती हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर एवरीवन. आप इसको बस जस्ट कॉपी करते चलो क्विकली. सबको चैट रिसीव हो गया है? अब मैं लेट के ऊपर if फंक्शन लगाने वाली हूँ. मुझे ये चेक करना है कि ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट से मुझे डेज मिल गए और एक सर्टेन क्राइटेरिया लगाना है मुझे कि अगर 7 दिनों से कम का उसका डिलीवरी टाइम है, ओके, डेज अंटिल डिलीवरी है, तो मैं उसको लेट नहीं कंसिडर करूंगी. लेकिन 7 से ज्यादा है, अगर किसी चीज का डिलीवरी डेट डेज जो है, डेज टोटल डेज, मतलब जैसे मान लो आपने कोई चीज अमेजोन से ऑर्डर करी या आपने किसी भी एप्लीकेशन से कोई चीज ऑर्डर करी. आज आप ऑर्डर करते हो, आज की डेट है 6 नवंबर, ओके? और अगर वो आपको मिल जाती है 10 नवंबर को, मतलब वो आपको लेट डिलीवरी नहीं है. लेकिन मान लो कि आपको वो मिलती है 18 नवंबर को, लेट्स से, ओके? तो 18 नवंबर को मिलती है तो आप एक कंडीशन लगा दोगे कि अगर मान लो कि डिलीवरी होने तक अगर 7 से ज्यादा दिन लग रहे, 1 वीक से ज्यादा लग रहे, उसका स्टेटस आ जाएगा लेट डिलीवरी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो अभी मुझे कैसे, अब मुझे यहाँ पे लॉजिकली एक डिसीजन मेकिंग लेना है कि 7 दिनों से ज्यादा रहेगा तो वो लेट डिलीवरी के स्टेटस में जाएगा. तो हाउ आई एम गोइंग टू यूज दैट कॉन्सेप्ट? सो लुक इट हियर, ओके? अब मैं यहाँ पे एक if फंक्शन से यूज कर रही हूँ. if, ओके, इन द ब्रैकेट आई विल बी
वर्किंग ऑन द कॉलम नंबर डी, क्योंकि कॉलम नंबर डी में मुझे डेज मिले रहेंगे। अच्छा, ये डेज भी कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो मान लो एक ट्रांजैक्शन, हम एक डमी ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं यहाँ पे। सो 2120 नाम का एक ट्रांजैक्शन ऐड किया मैंने। ओके, उसका एक डिलीवरी डेट डाला, ऑर्डर डेट डाला मैंने। मान लो मैंने एक ऑर्डर डेट डाला 25 मार्च। अभी ये 2020 का ही डेटा है, तो आई विल बी जस्ट कीपिंग एट 2020 ओनली। ओके, अगर आपको उसके ईयर चेंज करना है, यू कैन मेक द चेंजेस ओवर देयर। ओके, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। और उसका डिलीवरी डेट मैंने ले लिया है, मान लो 15 अप्रैल, क्योंकि मार्च के बाद आता है अप्रैल। सो आई विल बी जस्ट टेकिंग April 4 हियर। ओके, यहाँ पे ये 21 दिन हो गए। अब ये 21 दिन कैसे आए? बिकॉज आई हैड अप्लाइड हियर डेज का फॉर्मूला। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। डेज मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, हाउ इट इज बीइंग कैलकुलेटेड। डेज इज अ फंक्शन एंड आई एम पासिंग द वैल्यू फ्रॉम द कॉलम नंबर सी एंड बी। पहला सी जाएगा, क्योंकि हमेशा जो डिलीवरी डेट रहती है वो ऑर्डर डेट से बाद की रहती है। पहले डिलीवरी कभी नहीं होती ना ऑर्डर होने के पहले। सो इट्स वेरी बट ऑब्वियस दैट इट फर्स्ट यू हैव टू टेक अ सी column and the B column afterwards. Just do it. Have you done with that? हो गया आपका? कि थोड़ा फास्ट करेंगे हम, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक ही फंक्शन पे हमने आधा आधा घंटा इस पे यूज कर दिया तो बहुत ही हमको दिक्कत हो जाएगी कंप्लीट करने में कोर्स। नाउ आई एम यूजिंग ईफ कंडीशन हियर। ओके, सो ईफ इज अ फंक्शन। ओके, व्हाट इज द सिंटेक्स? लेट मी फर्स्ट डिस्कस द सिंटेक्स ऑफ ईफ। ओके, सो ईफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लॉजिकल, बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे डेटा सेट पे। और उसका सिंटेक्स होता है इक्वल्स टू ईफ इन द ब्रैकेट यू विल बी हैविंग लॉजिकल, बेसिकली जो भी आपका टेस्ट क्राइटेरिया होगा, लॉजिकल टेस्ट क्राइटेरिया। उसके बाद आपकी रहेगी वैल्यू। ओके, अगर वैल्यू, अगर वो टेस्ट क्राइटेरिया ट्रू होता है तो वैल्यू फॉर ट्रू। ओके, और दूसरा रहेगा वैल्यू, अनदर वैल्यू अगर वो फॉल्स होता है तो। ओके, सो इफ द फॉल्स, so this will be your syntax. This will be your syntax. Okay, so let's talk about the same syntax here. We will be implementing on the D basically column. So I'll be just using a D column here. Okay, D2, this is one of the column I am having. क्या होना चाहिए मेरा क्राइटेरिया कि 7 दिन से ज्यादा की डिलीवरी आती है तो वो हमारा क्या है, इट विल बी अ यस, ये लेट डिलीवरी है। और एल्स अगर नहीं है तो इट विल बी अ नो। इज दिस क्लियर? Now the very first column I get yes because 7 दिन से ज्यादा है 11 days, right? But the very next day I am getting no because 7, basically 5 is less than 7. Then again I am going next, I will find yes 8. तो 8 दिन जो है 7 से ज्यादा है तो obviously it's a late delivery. If I go to the next it will be no because I had taken greater than 7. तो वो 7 को भी हमारे लेट डिलीवरी में नहीं कंसिडर करेगा। If I'm going next, I'll get no because 3 is obviously less than 7. And if I go to the next, I will get yes because again 21 is too much late delivery. So it is obviously yes. Are you understanding this? How the if condition is working here? Ma'am, can you Yes, ma'am. once show the formula? Yeah, definitely. One minute. Look at this. If is a function. Obviously, after before function, you have to start with the equals to. It's a normal, basically, approach into the Excel. Equals to if in the bracket. So whatever be the column, आप किस कॉलम पे टेस्ट लगा रहे हो, लॉजिकली आप किस कॉलम को चेक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली डेज को चेक कर रहे हो ना, डेज अंटिल डिलीवरी, मतलब कितने दिनों में डिलीवरी हुई है। तो आप डी, मैंने डी लिया है। ओके, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव टेकन D2 हियर। इट हैज टू बी ग्रेटर देन 7। अगर वो 7 से ज्यादा है इट मीन्स दैट वो डिलीवरी यस है, मतलब लेट डिलीवरी है। ओके, मतलब ये ट्रू है कि भाई ज्यादा है इसलिए वो यस दे रहा है, मतलब लेट डिलीवरी हुई है। अगर आप
फॉल्स। देखो क्या होता है, जब भी हम इफ कंडीशन लगाते हैं तो उसके दो आउटकम आएंगे, एक तो वो सही है या गलत है। ओके, सो देयर विल बी टू थिंग्स हियर, वन इज अ ट्रू कंडीशन, अनदर इज अ फॉल्स कंडीशन। तो आपको दोनों देना है। सो नो, नो विल बी द फॉल्स कंडीशन, मतलब डिलीवरी टाइम पे हो गई है, विद इन 7 days डिलीवरी हो गई है। सो दिस वे वी विल बी कैलकुलेटिंग हियर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस मैम। अभी इसी कंडीशन को लेके हम बात करेंगे सम इफ की। सम इफ कैसे काम करता है? सम इफ is again one of the most important function into the Excel. Okay, इसमें क्या होता है, it will sum up the values that meet the specific criteria। मतलब जैसे आपने एक क्राइटेरिया दिया और उसके बाद उसके ऊपर समेशन लगाया, तो वो समेशन लगा के आपको चेक करना है कि कितनी वैल्यूज ने क्राइटेरिया फुलफिल किया है। ओके, एक सिंपल लॉजिक है। अगर जैसे मान लो कि आपके पास एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है। ओके, स्टूडेंट रिकॉर्ड में अगर मान लो कि कुछ मार्क्स है, मैथ्स के मार्क्स है। ओके, अब मैथ्स के मार्क्स है तो एक 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है आपके पास, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट हु फेल्ड, देयर आर मेनी स्टूडेंट हु पास्ड। ओके, तो आपने क्राइटेरिया लगा दिया कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50, ओके, मतलब आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50 स्टूडेंट इज पास्ड, उसके नीचे 49 वाला भी फेल रहेगा। अब आपको ये चेक करना है कि एवरेज कितने बच्चे पास हुए 100 में से। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सो सम इफ फॉर्मूला इज बेसिकली सम अप द वैल्यूज दैट मीट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इज इट क्लियर नाउ how it works? So let's talk about a sum if with the one of the data set here. So I am having already one of the data set with the region। okay, उसके प्रोडक्ट से रीजन है और उसका सेल हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया लगाना है कि इफ आई वांट टू सम अप सर्टन वैल्यूज। ओके, क्या वैल्यूज सम अप करना है मुझे? कि जितना भी सेल हुआ है यहाँ पे, कितने रीजन में टोटल सेल हुआ है, मतलब ईस्ट रीजन में कितना सेल हुआ है। अंडरस्टूड? तो मैं कैसे वर्कआउट करूंगी टोटल सेल पे? सबसे पहले तो मैं आपको सिंटेक्स बताती हूँ सम इफ का यहाँ पे। दूसरा फंक्शन है सम इफ्स। ओके, सम इफ का कैसे फंक्शन का मतलब ये एक फंक्शन होता है, वो भी बहुत कॉमनली यूज होता है डेटा एनालिटिक्स में। और इसका जो और सिंटेक्स है, सम इफ सम रेंज, जिसका भी रेंज चाहिए आपको, क्राइटेरिया रेंज, और जो भी आपकी अलग अलग क्राइटेरिया है आप उसमें ऐड करते चलो। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जो हमारा ऑलरेडी एक एग्जाम्पल है। अब मैं इसका क्या करती हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे कॉपी करके दे रही हूँ। ओके, सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी, इट इज इजी फॉर यू, कि Ma'am, जो please show. डेटा सेट मेरे पास है उसी पे आप भी काम कर रहे हो। Ma'am, please show last formula again. सिंटेक्स बताओ आपको, Yes, ma'am. Ma'am, last one. 1 सेकेंड। Done, ma'am. Thanks. Okay. Now we will be applying the this sum if criteria on the region. Okay. अब कैसे यूज करेंगे यहाँ पे? Let's see here. मुझे टोटल सेल देखना है। Okay. Sum ifs C2, सेल की बात कर रहे हैं तो सेल सेल कॉलम पे ही वर्क करेंगे। तो C2, इसका एक चीज सही लगा था, इसमें वो नहीं था कि लास्ट में वापस उसी को पावर दे दिया है और वही उसको मारा जा सकता है। जो भी मारा, C9 उसको मारा तो और सही एक सर्टन वैल्यू लिया मैंने। क्या वैल्यू लिया? मान लो मैंने लिया E3। मतलब ये जो E3 है मतलब ईस्ट, तो मुझे ईस्ट रीजन के मतलब ईस्ट रीजन के जितना भी सेल हुआ है उसका टोटल सेल मिला ही है। आप समझ रहे हो?
व्हाट आई गॉट इट, रीजन वाइज मुझे सेल मिला है, यहाँ पे ईस्ट रीजन भी है, वेस्ट भी है। ये बहुत एक छोटा सा डेटा सेट लिया है, लेकिन जस्ट ट्राई टू इमेजिन व्हेन यू गेट अ एक्चुअल डेटा सेट, वो बहुत ह्यूज डेटा सेट होता है। आई हैव डाउनलोडेड वन डेटा सेट, आई एम गोइंग टू शेयर दैट डेटा सेट ऑल्सो विथ यू टुडे। And that data set is basically with the population actually जिसका पूरा मतलब इंश्योरेंस मेडिक्लेम रिलेटेड डेटा सेट है, वो मैंने डाउनलोड गूगल से ही करा हुआ है, आप भी कर सकते हो वो। और उसके ऊपर आप फिर ये सारे फंक्शंस सेपरेटली यूज कर सकते हो, यू कैन हैव इट दैट वे ऑल्सो। Ma'am, can you just please show the formula? डेफिनेटली, या अभी आप यहाँ पे क्या करो, रीजन में मैंने ईस्ट लिया है ना, आप वेस्ट लेके देखो, यहाँ पे यहीं पे वेस्ट लो, तो जो E3 है, आप लगे तो E4 करके यहाँ वेस्ट लिखो और यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करो, तो आपको अलग वैल्यूज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो वेस्ट रीजन का सेल आएगा टोटल। करके देखो, ट्राई इट। अब इसमें आप काउंट इफ एक फंक्शन आता है, ओके, द अनदर फंक्शन वी आर हैविंग विच इज मोस्ट कॉमनली यूज, अ काउंट इफ, काउंट इफ्स, ओके। सो काउंट इफ फंक्शन एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है एक्सेल में डेटा एनालिसिस करते टाइम। इट इज वेरी सिमिलर टू द सम इफ फंक्शन, okay, it is very similar to the sum if function, it is very similar with the sum if function, okay। but यहाँ पे हम क्या करते हैं, okay, यहाँ पे हम क्या करते हैं, like जैसे हम यहाँ पे लाइक एवरेज, मैक्स, मीन, ये जो फंक्शन हमने यूज करा, उसी टाइप से काउंट इफ का काम होता है यहाँ पे, ओके। सो काउंट इफ फंक्शन क्या करेगा, काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट मीट द क्राइटेरिया। यहाँ पे सम इफ में क्या हुआ, क्राइटेरिया नहीं डाला था हमने, सिर्फ वैल्यूज ईस्ट रीजन और वेस्ट रीजन दे के दे रहे, मतलब हार्ड कोडेड हम डाल रहे थे कि ईस्ट रीजन का वैल्यू दो, वेस्ट रीजन का वैल्यू दो। अगर हमको क्राइटेरिया डालना है कि इट हैज टू बी ग्रेटर देन सम वैल्यू, तो हम सम इफ से काम नहीं कर सकते, हमको काउंट इफ करना पड़ेगा। तो काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, व्हाट एक्चुअली इट डज, इट विल एक्चुअली, मतलब मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, काउंट इफ function will count the number of values that meet specified criteria, okay। It therefore does not require a sum range। यहाँ पे रेंज की जरूरत नहीं है, ओके। सम इफ में हम रेंज ले रहे थे, यहाँ सम इफ जैसा रेंज की जरूरत नहीं है, हमको क्राइटेरिया रेंज लेनी पड़ती है यहाँ पे, ओके। सो व्हाट इज सिंटेक्स, तो सिंटेक्स देख लो, काउंट इफ्स ऑब्वियसली, क्राइटेरिया रेंज 1, और फिर क्राइटेरिया 1, और जितने भी क्राइटेरिया आपको डालने हैं आप डाल सकते हो, ठीक है। सो इन द गिवन डेटा सेट ओनली, अगर हम ये जो हमारा डेटा सेट है सेल्स का ही, अगर इसी की बात करें, तो हमको अगर इफ आई वांट कि आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम अ रीजन एंटर्ड एज अ, जो भी E3 में है, अभी E3 में क्या है, ईस्ट है, ओके। तो ईस्ट की वैल्यू कौन कितने सेल में, मतलब दैट एंटर्ड वैल्यू मुझे चाहिए है कि 200 एंड मोर, मतलब 200 से ज्यादा किसी वैल्यू हुई है क्या सेल का, ओके। तो हाउ आई एम गोइंग टू यूज दैट,
सो अगर हम काउंट इफ पे जाते हैं, अब यहाँ वेस्ट फंक्शन पे काम करते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ वेस्ट पे काम कर रहे हैं। ओके, सेम एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हम काउंट इफ की फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं काउंट इफ लगा रही हूँ यहाँ पे, काउंट इफ्स इन द ब्रैकेट व्हाट आई एम टेकिंग B2 B9 comma E3, that's my criteria, C2 C9, okay, which has to be greater than equals to 200. This is my criteria I had applied. So how many things I got it? दो। देखो यहाँ पे वेस्ट रीजन में दो ही ऐसे कॉलम है। देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, मतलब जिससे आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि दो ही ऐसे कॉलम है, दो ही ऐसी वैल्यूज है जो 200 से ज्यादा है, और मैंने वही क्राइटेरिया दिया है 200 से ज्यादा। तो मुझे दो मिल गया। कितना नंबर ऑफ सेल यूनिट मिला? दो। कि वेस्ट रीजन में दो जगह पे पजल्स और पेंट सबसे ज्यादा सेल हुए हैं। Are you understanding how the data is and how we are evaluating using these functions? Yes, ma'am. आप ये करो, मतलब आप मेरे साथ करोगे तो ही आपको समझेगा, इसलिए मैं आपको शेयर भी कर रही हूँ डेटा, और मैं आपको टाइम भी दे रही हूँ इन बिटवीन। डू इट। ट्रिम, अभी ट्रिम फंक्शन की बात करते हैं। ओके, सो ट्रिम फंक्शन इज वेरी ब्रिलियंट फंक्शन विच रिमूव्स द स्पेसेस फ्रॉम द सेल। ओके, मतलब आपको स्पेसेस है, कुछ वर्ड्स के बीच में स्पेस है, या आपने कुछ जो डेटा आपके पास आया, तो मेनली ट्रिम फंक्शन जो है ना वो क्लीनिंग प्रोसेस में काम आता है, जो हम डेटा क्लीनिंग बोलते हैं ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रिम फंक्शन की। कहीं स्पेस है, जैसे मान लो कि कहीं नाम है और उसके वर्ड्स के बीच में स्पेस आ गया है, तो वो यूनिफॉर्मिलिटी मेंटेन करना है, सो दैट टाइम यू कैन यूज द ट्रिम फंक्शन टू रिमूव ऑल द स्पेसेस फ्रॉम द सेल। ओके, अब कैसे काम करता है ट्रिम फंक्शन? ट्रिम फंक्शन कैसे काम करेगा? अगर मान लो जैसे यहाँ पे पहले तो आपको स्पेस देनी पड़ेगी। ओके, सो अगर आपने स्पेस दिया तो वो आपके इस पे काम करेगा। अगर स्पेस है ही नहीं तो कोई आपको क्लियरली दिखेगा ही नहीं कि स्पेस था नहीं था। ओके, सो आई एम जस्ट अप्लाइंग ऑन द ट्रिम फंक्शन हियर। ओके, तो यहाँ पे ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्रिम फंक्शन, अब पहले तो मैं आपको सिंटेक्स बता देती हूँ ट्रिम फंक्शन का। यहाँ पे फोर्थ फंक्शन में ही बात कर रही हूँ ट्रिम की। ओके, सो ट्रिम फंक्शन इज बेसिकली यूज फॉर व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग ट्रिम फंक्शन? ट्रिम फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव all spaces from the cell or from the data. Okay, और यूज कैसे होगा? ट्रिम इन द ब्रैकेट वी विल बी पासिंग द वैल्यूज। कौन से कॉलम पे ट्रिम फंक्शन यूज होने वाला है? इट्स अ वेरी सिंपल फंक्शन। ओके, सो ट्रिम इन ब्रैकेट वॉट एवर बी द टेक्स्ट यू वांट टू have it. Okay, so just apply the trim here. Let's see. So equals to, I'll be using trim, अच्छा यहाँ नहीं करते हुए मैं ऊपर यहाँ पे करती हूँ, equals to trim in the bracket I will be having say B2। तो देखो यहाँ B में यहाँ स्पेस है, लेकिन यहाँ पे ये स्पेस हट गया है क्योंकि आई हैड अप्लाइड ट्रिम हियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देखो यहाँ स्पेस मैंने क्रिएट किया था जानबूझ के, ये दिखाने के लिए कि ये स्पेस है।
ऐसे आप स्पेस करो यहाँ पे 2 और फिर ट्रिम अप्लाई करो। देखो यहाँ पे आप ये फिर से नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, जबकि यहाँ पे डेटा जो है वो स्पेस्ड है, ईस्ट के आगे स्पेस है, सो इट इज रिमूविंग द स्पेस। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Now we will talk about concat. Okay. So concat is basically work on the two values, जैसे फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है और उसको concat करके फुल नेम लेना है। सो नॉर्मली जहां पे हमको दो वैल्यू, जैसे एड्रेस है तो एड्रेस फील्ड में भी काफी ऑप्शंस रहते हैं ना, जैसे एड्रेस है, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट बेसिकली नेम, लोकेशन नेम। अगर उसको पूरा कॉन्कैट करके एक एड्रेस कॉलम में ऐड करना है तो वहां पे भी कॉन्कैट यूज कर सकते हैं। सबसे कॉमनली यूज होने वाला फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, जो दो कॉलम है उसको फुल नेम एज अ ट्रीट करना है तो यू कैन यूज अ कॉन्कैट हियर। सो कॉन्कैट इज बेसिकली कंबाइन द वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल सेल्स। ओके, तो अनदर मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन है कॉन्कैट और कॉन्कैटिनेट, दैट वुड बी बेटर। ओके, कॉन्कैटिनेट फंक्शन, कॉन्कैट हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन इट्स अ कॉन्कैटिनेट फंक्शन विच कंबाइंस द वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल सेल्स। ठीक है, मेनली कहाँ पे यूज होता है, जहां पे फुल नेम आपको ये करना हो, तो यू कैन कॉन्कैट फर्स्ट नेम, है ना, किसी का फर्स्ट नेम प्लस आपका लास्ट नेम, आप ऐसे कॉन्कैट कर सकते हो। कहीं पे एड्रेस है, कभी किसी चीज का पूरा एड्रेस है, तो एड्रेस में कैसे रहता है आपका, जैसे हाउस नंबर एक सेल है, प्लस आपका स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम एक सेल है, फिर आपका लोकेशन है तो वो, प्लस सिटी है वो। तो ऐसा आप ऐसे पूरा एक साथ आप कॉन्कैट कर सकते हो इन द एड्रेस कॉलम। इज दिस क्लियर? इसका क्या बात है, आज कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं क्या मेरे साथ? तो दे आर मोर फोकसिंग ऑन देयर प्रैक्टिस पार्ट। Yes, ma'am, we are doing it. Okay, then fine, no worries. If anyone facing any problem, they can ask me at any moment. Okay, so ऐसे करके आप सारे सेल, सारे आप जो भी सेल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, B1 B2 B3 वॉट, सॉरी, B1 C1, और जो भी आपके सेल नेम्स रहेंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे फुल नेम पे मैं कॉन्कैट ऐड कर रही हूँ, कॉन्कैटिनेट एक्चुअली, कॉन्कैटिनेट। What values I am going to use it here? I'm going to have A2 and B2. So I got Sarah Thompson is a complete name here. For example, like if suppose I am having, so I will get it, Amma Pandit. Is it clear? Now you may ask me like इसके बीच में अगर मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि ये देखो ऐसे कंटिन्यूअस मिला है, राइट? If I want to give space, how I can give the space? It's very simple. You just have a double quotes, space, double quotes. फंक्शन पे काम नहीं कर रहा है क्या? सो यहाँ पे स्पेस जनरेट हो गया। आर यू एबल टू सी? इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्पेस, यू कैन इंक्रीज द स्पेस ऑल्सो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. चलो क्विकली करो।
कॉन्कैट डन, सबका हो गया कॉन्कैट करके? Yes, ma'am. Just one second. ओके, फिर आता है लेफ्ट एंड राइट। ये काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ओके, सो बेसिकली दिस फंक्शन विल डू अपोजिंग द एक्शन ऑफ कॉन्कैट। ओके, मतलब ये एक्सट्रैक्ट करेगा। कॉन्कैट में क्या दोनों चीजें ऐड हो रही है, मतलब जो भी कॉलम है मल्टीपल सेल की वैल्यूज ऐड हो रही है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक नंबर और अ कैरेक्टर। अब कैसे करेगा ये देखो। तो ये मेनली कहाँ यूज होता है, जैसे जहां पे कोड है, कोई रेफरेंस है या यूआरएल आई हुई है, यूआरएल में से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है आपको, तो उस केस में यू विल बी यूजिंग दिस लेफ्ट और राइट फंक्शन। पहले मैं आपको इसका सिंटेक्स दे देती हूँ। सो लेफ्ट एंड राइट फंक्शंस will do, sorry, concatenate. Okay, so what they will do, they will extract a specified number of characters from the start and end of your text. So let's talk about that. And this can be used, mainly this can be used to extract parts of an address or URL or any reference code value. Okay, so we will see how the syntax will be. So left in bracket जो भी आपका टेक्स्ट वैल्यू है, मतलब सेल का नंबर, प्लस जो भी आपको नम कितने कैरेक्टर्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, लाइक दैट इट इज। सेम विद योर राइट, मतलब वो राइट से आगे से या पीछे से, इस टाइप से वो उसका मतलब पहले से प्रीफिक्स पार्ट हटाएगा या लास्ट वाला सफिक्स वाला हटाएगा। दैट इज बेसिकली द राइट एंड लेफ्ट कॉन्सेप्ट। ओके, now I am going back to here and now I am applying this. Okay, so let's say I am applying for a client ID. I want, ये एक reference code मुझे generic मिला है, मुझे वो reference code देख के समझ में ही नहीं आ रहा कि client ID क्या है। So I will be using certain logic here with the help of left function. So the left I'll be having A2, जो भी मेरा reference code है A2, इसमें से जो पहले दो characters है वो ideally client ID है। So XM is my client ID. Are you understanding? यहाँ पे LD is my client ID. So whatever be the client ID, I will get it like this. Is this clear? Yes, ma'am. And regarding the code, what I will get it, suppose अगर मुझे code के लिए बात करनी है, तो I will be using right here, क्योंकि right will be from the back side of your reference code. So it will be working on the right. Obviously, it is for the A column only. So A2, comma 1. So this will be my रजिस्टर्ड कोड। सो S ये जो है वो मेरा एक रजिस्ट्रेशन कोड होगा, वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है आपको? या नाउ क्विकली, आई नो सभी को फिल्टर और सॉर्टिंग पता ही होगा, तो मैं फिल्टर और सॉर्टिंग क्विकली बता देती हूँ। वी लुकअप हम हो सकता है अगले इसमें करें। सो इफ आई वांट टू सॉर्ट समथिंग, हाउ आई एम गोइंग टू सॉर्ट इट? So sort by the values here. Okay, how I sorted like this?
Okay, subject wise and sort wise. Yes. सॉर्टिंग कैसे करते हैं हम? यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन है हमारे पास, फिल्टर सॉर्टिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, राइट। तो ये एक तरीका हुआ कि आपके पास डायरेक्टली यू कैन गो एंड यू कैन जस्ट अप्लाई द सॉर्ट ऑन इट। ओके, मतलब अगर मुझे यहाँ पे सॉर्टिंग लगाना है, किस पे लगाना है, कि अगर मुझे यहाँ पे मिनिमम कितना इस पे है, मतलब मान लो मुझे यहाँ पे सॉर्टिंग लगाना है स्मॉलेस्ट। ओके, तो okay, this is a kind of array I had taken. Oh, okay, 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 okay. If suppose I'm just copying this data and I'm just keeping here. I'm just copying this values and I'm just pasting here. Okay. So these are the values I got it. And now I want to apply sort. पर यहाँ पे सॉर्ट हो गया, लेकिन मेरे प्रोडक्ट सॉर्टेड नहीं है, राइट। हाउ आई एम गोइंग टू हैव दैट प्रोडक्ट आल्सो बीइंग सॉर्टेड? तो यहाँ पे मैं ऐसे भी यहाँ पे फिल्टर लगा के I can use filters and I can find which is a max and which is a smallest value. So I will get it the respective products and its respective total value with the sorted amount smallest to largest. ये एक शॉर्टकट तरीका बताया है, लेकिन we also have function called sort which we can also apply on the data like this. तो जब हम सॉर्ट लगाते हैं तो उसके पहले हमको यूनिक पहले अप्लाई करना पड़ता है। सो व्हाट इज दैट यूनिक कॉन्सेप्ट इज? सो यूनिक इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन। ओके, यूनिक इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन। यूनिक इज बेसिकली is available only in the Excel dynamic array environment। मतलब सबसे पहले हमको डायनामिक एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड इट इज मेनली अवेलेबल इनटू द एडवांस वर्जन ऑफ एक्सेल ओनली। मतलब एक्सेल 2021 के आगे ही ये फीचर अवेलेबल है, और एक्सेल 365 मतलब क्लाउड वाले वर्जन में भी ये अवेलेबल है। ओके, तो अगर कोई उससे पुराना वर्जन यूज कर रहा होगा, सो डोंट वरी। ओके, we will just understand it। okay, अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो यू कैन डू इट प्रैक्टिकली। ओके, सो यूनिक पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायनामिक अरे एनवायरनमेंट, एंड देन वी गो फॉर द सॉर्ट फंक्शंस। और इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसका नाम है वी लुकअप। ओके, सो वी लुकअप इज मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन फॉर अ डेटा एनालिस्ट, जो एक बड़े डेटा सेट पे पर्टिकुलरली वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके उस वैल्यू को एनालाइज करता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके, मतलब ये तो है ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमनली यूजफुल फंक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बट यूनिक, सॉर्ट and VLOOKUP, they are very important. So today already the 7 o'clock it is, so I don't think so we will cover that, but जितना आज हमने अंडरस्टैंड किया है, प्लीज ट्राई टू वर्क ऑन सर्टन डेटा सेट, or whatever be the functions which if you had applied, if you had not applied you understood, so at least वो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा है कि like unless and until you don't practice you will not remember the अप्रोच। ओके, सो आपको पहले प्रैक्टिस करना ही जरूरी है। तो ईफ, सम इफ, काउंट इफ, राइट, लेफ्ट, कॉनकैट, ये जितने भी हमने अभी फंक्शंस देखे हैं वो प्लीज करो। कोरिलेशन अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो प्लीज ट्राई टू रिवाइज द कोरिलेशन एज वेल। ओके, एंड देन वी विल सी द फ्यू मोर functions into the Excel which is being used for the data
basically analyst, and then we will see the pivot table as well. Okay, so ये सारी चीजें हम next class में देखने वाले हैं Excel part से. Okay, is there any doubt? No, ma'am. Ma'am, can you just please share the notes file? Yeah, sure. Just give me 1 minute. I'm just saving that and I'm just sharing with you. In the chat only, I'm going to share. Just give me 1 second. I hope everybody had received the file, session notes file in the chat. Please download it. And why today students are very less? अभी तक आए नहीं क्या? अभी दिवाली फेस्टिवल ही चल रहा है उनका. कहाँ है आपके सब दोस्त? आज काफी कम लोग हैं. एवरीडे मतलब एवरी टाइम सेशन में कम से कम और भी काफी लोग रहते हैं. आज काफी कम है. सो लाइक प्लीज इफ यू आर इन द कनेक्ट विद देम, सो प्लीज टेल देम कि अभी काफी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है एक्सेल की. सी रिकॉर्डिंग से उनको सिर्फ समझ में आएगा, बट इफ दे हैव एनी डाउट दे कैन नॉट बी एबल टू कनेक्ट ना. सो दैट्स व्हाई लाइव सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ट्राई टू टेल देम कि ये सारे जो हैंड्स ऑन चल रहा है वो प्लीज अटेंड करें. ओके, fine. So on this note, I am ending the session here. Please practice. Okay, we will meet again on the Friday, and we will continue with the few more functions and advanced topic of the Excel, that is a pivot table. Till then, please practice. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Bye. Bye, Thank you, everyone. ma'am.